स्मॉल टी ऑफ कोर्स. सो इसको यहाँ पे लेके जाओ. तो अलग अलग फाइंड आउट करने से अच्छा है. ए तो स्फीयर का है, इट इज गोइंग टू बी सेम. क्यू बाई टी आपको कैलकुलेट करना है, सिग्मा इज गोइंग टू बी सेम. तो सब्ट्रैक्शन में एग्जैक्टली आप सब्ट्रैक्ट किसको करोगे, टी के अमाउंट को. सो डायरेक्टली गो फॉर द फॉर्मूला Q बाई टी इज इक्वल्स टू, अलग अलग कैलकुलेट करके फिर सब्ट्रैक्ट करने से अच्छा है कि ऐसा कुछ करो. सिग्मा इंटू ए कॉमन करो, टी रेस टू T2 raised to 4 minus T1 raised to 4. That is Q by T is equals to sigma into A. ये कितना था 110 डिग्री सेल्सियस. 110 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट हाउ मच, यू विल गेट 383. 383 raised to 4 minus how much, 373 raised to 4. Sigma substitute करो, A substitute करो, you will get the amount of heat required to maintain the temperature at 110 degrees Celsius. Sorry, amount of heat radiated per unit time required to maintain the temperature as at 383 Kelvin. That is 110 degrees Celsius. Are you clear? Yes, miss. Sure. Hello, So ma'am. either you can, yeah, ask. मैम तो उसका वैल्यू बहुत बड़ा आ रहा है. वैल्यू बहुत बड़ा आ रहा है. हाँ. तो क्यों बड़ा आएगा, ये सिग्मा है ना. सिग्मा का वैल्यू इज 5.76 into 10 raised to minus 8. लेकिन तभी टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच नहीं हो रहा है. कितना आ रहा है आंसर? 1 मिनट मैम. How much answer you are getting? हेलो मैम. हाँ, ask. मैम वो R1 by R2 का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना? R1 by R2, which formula you are talking about? मैम वो R1 is equals to E sigma AT4. That is same rate of radiation, वही तो है वो फॉर्मूला. तो फिर कुछ मैम अलग नहीं है. R1 by R2 करके फिर R1 का आंसर करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी तो आ सकता है ना? हाँ, कर सकते हो, नॉट अ बिग डील. तो मैम तभी भी R2 का वैल्यू 9.5 into 10 raised to 4 आ रहा है. नो 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 नो, एक मिनट, तुम लोग एक और मिस्टेक यहाँ पे कर सकते हो, प्लीज जरा ध्यान से देखो. ये एरिया तुमने क्या लिया है? What you have taken the area? It is a sphere. So your area will be 4 pi r square. And your r is given in centimeters. मैम 78.5 into 10 raised to minus 2 ही लिया है. Okay. So overall, I have solved this sum. You'll get the answer as 0.965. आ रहा है answer. You'll get the answer. Correct answer आ रहा है. Calculation mistake कर रहे हो कुछ. You'll get the answer as 0.964 or 924. You'll get this answer. Amla, what you have taken A value? मैंने सेंटीमीटर में लिया. That's what the part is. You did a mistake here. Okay. And keep it in mind, this area you will take a sphere area. That will be 4 pi r square. 4 pi r square ही लिया, लेकिन रेडियस का सेंटीमीटर में लिया. Okay, means you did a mistake there. Fine, fine, fine. Thank you. Manya, are you clear with the sum? What you need to do? मैम Don't मैंने go for सेंटीमीटर को मीटर में भी किया. 2.5 into 10 raised to minus 2 भी किया. 10 raised to minus 4 होगा वो. एरिया है ना? It will be 10 raised to minus 4. रेडियस को 2.5 सेंटीमीटर को 2.5 into 10 raised to minus 2 मीटर में किया. उसके बाद एरिया निकाला. 10 raised to minus 4 में एरिया आया. आएगा मैंने आंसर, मैंने सॉल्व किया है. आई हैव गॉट द आंसर. यू विल गेट द आंसर. टेक्स्ट बुक से थोड़ा बहुत अप्रोचिंग मिलेगा, बट यू विल गेट इट. हाँ ठीक है. यूज दिस मेथड. हेलो मैम. पूछो. हाँ पूछो. मैम 22 का टेक्स्ट बुक में रॉन्ग है क्या? 22. What is the answer? I don't know. What is the question first of all? वो रेशियो निकालना था रेट लॉस. Correct. If Ts is the temperature of the system, T is the temperature of your environment or surrounding, then Q is the amount of heat that is being lost by the system in the surrounding. And of course,
whenever, this is just a sign convention, that if there is a heat loss by the system, if there is an energy loss by the system, you have to take that energy loss as negative. मतलब अगर आपको कहीं पर explain करना है कि from my system there is an energy loss, sorry, from my system there is an energy loss, you will simply say that my energy loss is negative. It simply means that there is a loss in the energy of the system. Okay. So for such conditions, when your TS is greater than TE and there is an energy loss, you can simply say that your Q is negative. That is, Q is smaller than 0. Q smaller than 0 simply means that there is an energy loss from the system, nothing else. Okay. Now, next condition is, if TE is greater than TS, अगर एनवायरमेंट का जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो सिस्टम के टेम्परेचर से बड़ा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एनर्जी लॉस नहीं होगी, एनर्जी गेन होगी. आपका जो एनर्जी है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है. सो फॉर सच कंडीशन योर Q will be greater than 0. And if the system is in thermal equilibrium with the surrounding, means आपका TE is equals to TS है, so then there will be no gain, neither loss in the energy, and at that condition you will say that Q is equals to 0. That is, the energy transferred is equals to 0. Q smaller than 0 means energy is lost by the system, or energy is transferred from system to the surrounding. If Q is greater than 0, it can simply say that energy is gained by the system. Simple सा फंडा है. ले रहे हो तो खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे. किसी को दे रहे हो तो एक नेगेटिविटी आएगी कि you are losing something. Okay. So when the energy is transferred to the surrounding, then Q is smaller than 0. If energy is gained by the system, Q is positive. And if the system and surrounding are in thermal equilibrium, there will be neither gain nor loss in the energy. There will be no transfer of energy, and Q will be taken as 0. Here Q is the energy transferred. Okay. So are you clear with the things? No doubt till here. Are you clear with the things? When Q is negative? When the energy is lost. When energy is gained, Q is positive. And when there is neither gain nor loss in the energy, then the energy transferred will be equals to 0. That is, Q is equals to 0. Okay. Means the system is in thermal equilibrium with each other. Let's go ahead with a new topic. Now, here we were talking in the terms of Q. और ज्यादा better way में define करके बात करते हैं इन्हीं चीजों के बारे में. Here we talked in the terms of energy कि loss हुआ, gain हुआ या नहीं हुआ तो क्या होगा. Let's talk in a very simplified manner और थोड़ा सा elaborate करते हैं इन चीजों को. For that, let's take an experiment. एक experiment लेते हैं इस चीज को समझने के लिए कि there is a cylinder here. Okay, एक cylinder है. Let's connect this amount of heat transfer to the internal energy. अब क्या करते हैं, सारी चीजों को internal energy के साथ connect करने की कोशिश करते हैं, so that we can explain these things why we are taking Q as negative, positive or 0 with the help of an internal energy or with the help of an kinetic energy. That is the microscopic property of your system. Okay, let's take a cylinder here. एक cylinder लेते हैं. And it consists of a piston which is massless and frictionless. Massless and frictionless इसलिए लिया जाता है कि इस piston के मास का कोई भी इफेक्ट तुम्हारे सिलेंडर पे नहीं होना चाहिए और इसके फ्रिक्शन की वजह से कोई भी एनर्जी लॉस होना नहीं चाहिए. हालांकि perfectly massless frictionless piston is not available, of course, but let's take for the experiment. Okay, now what we are doing, inside the cylinder there is an ideal gas. Let's take an ideal gas जिसका temperature we are keeping at 100 degrees Celsius. Since we are talking about internal energy of the system. The topic is internal energy of a system. Okay, it is represented by capital U, of course. Fine. So let's take a cylinder in which there is an
frictionless massless piston. I have explained you why it is frictionless and why it is massless. Let's take an ideal gas inside which is kept at 100 degrees Celsius. Now, इस अंदर के गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज करने के दो तरीके हैं. What are those two ways? Let's understand. अब मैं क्या कर रही हूँ, ये पर्टिकुलर जो सिलेंडर है, I am heating it. मैं बाहर से हीट सप्लाई कर रही हूँ. I am applying an heat from outside. Okay? When I apply an heat from outside, और मैं इस पिस्टन को बाहर एक्सपांड होने नहीं दे रही हूँ, so simply होगा क्या, ये अंदर का जो भी गैस है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, the temperature will increase. Let's say that the temperature increases by 200 degrees Celsius. And of course, our internal energy is related to the temperature. मतलब एक तरीका तो ऐसा है कि अगर मैं बाहर से हीट अप्लाई करूं किसी भी एक पर्टिकुलर सिलेंडर को, तो क्या होगा, उसके अंदर के जो गैसेस है उनका टेम्परेचर बढ़ेगा. ओके, ऑफ कोर्स प्रेशर भी बढ़ेगा. दैट्स ट्रू, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. ओके, so there will be an increase in the internal energy of the system. मतलब एक तरीका तो है by heating, दूसरा तरीका लेते हैं by changing the internal energy. अब what I am doing to the same cylinder, instead of heating, एक तरीका तो ये हो गया by heating. दूसरा तरीका है कि instead of heating अब मैं क्या करूं, what I will do, मैं इस पर्टिकुलर पिस्टन को कंप्रेस करूं मतलब अंदर की तरफ पुश करूं. अंदर की तरफ पुश करने से होगा क्या, देयर विल बी अ वर्क डन ऑन दिस गैसेस. और तुम्हें पता है कि व्हेन देयर इज अ वर्क डन, देयर इज एन प्रोडक्शन ऑफ हीट. जितना आप काम करते हो उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है. ओके, सो बाय कंप्रेसिंग इट होगा क्या, आपका देयर विल बी अ वर्क डन ऑन द गैस बाय दिस पिस्टन. बाहर से वर्क डन होगा और वर्क डन क्या करेगा, इन गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर हीट प्रोड्यूस करेगा. एंड नाउ अगेन योर टेम्परेचर, हम इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. ऑफ कोर्स इट्स एन आइडियल कंडीशन, नॉर्मली इट डज नॉट हैपेंस. अगेन द टेम्परेचर रीचेस टू 200 डिग्री सेल्सियस. मतलब आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का दो तरीका है. आइदर यू सप्लाई एन हीट फ्रॉम आउटसाइड और यू गो फॉर द वर्क डन. बोथ ऑफ द केसेस व्हाट दे विल डू, they will simply increase the internal energy of the system. उसी तरीके से वाइस वर्सा भी कर सकते हो, that if you want to decrease the internal energy, simply क्या करोगे डिक्रीज करने के लिए, जहां पर 100 डिग्री सेल्सियस था किसी तरीके से इसका टेम्परेचर लो करोगे. अगर इसका टेम्परेचर लो होता है, ये कब पॉसिबल है, जब इसको ऐसे सराउंडिंग में रखो, वर्क करने से टेम्परेचर भी बढ़ेगा. ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट आई सेड earlier, it was 100 degrees Celsius, now the temperature is being 200 degrees Celsius. So of course it will, there is a change in the energy, and if there is a change in the energy, you know that energy is connected to the temperature. We have already proved it, that your internal energy is connected to the temperature. And here we are talking about the ideal gases, so of course totally your internal energy depends upon the temperature. Okay, so here अब यहाँ पे तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हो गया. द सेम वे यू कैन डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एज वेल, कि जहां पर यू आर हीटिंग इट, इसको किसी ऐसे एनवायरमेंट में रख दो जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो. अब जब 100 डिग्री सेल्सियस से सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, यहाँ से जो भी हीट है वो बाहर की तरफ लॉस होगा तो देयर विल बी लॉस इन द टेम्परेचर, एंड देयर विल बी अ लॉस इन द टेम्परेचर मींस देयर विल बी अ डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सेम यहाँ पर जहां पर आप कंप्रेस कर रहे थे, आप इस गैस को एक्सपांड करने के लिए अलाउ करो. एक्सपांड करोगे तो क्या होगा, गैस फ्री हो जाएंगे. गैस फ्री हो जाएंगे इसका मतलब क्या है कि जो भी गैस मॉलिक्यूल्स है वो अपनी एनर्जी कहां पर यूज कर रहे हैं, पिस्टन को एक्सपांड करने के लिए यूज कर रहे हैं. मींस दे आर यूजिंग देयर एनर्जी टू एक्सपांड दिस पिस्टन. ओके, सो व्हेन दे विल एक्सपांड दिस पिस्टन, देयर विल बी अ लॉस इन द एनर्जी. सो इन दिस वे आप टेम्परेचर और वर्क डन के हेल्प से यू कैन चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. डू यू हैव एनी डाउट टिल हियर, प्लीज आस्क. or should I go ahead? Okay, now by this experiment, how to decrease U? सिंपल है आयुष, या तो आप अपने
सिलेंडर को किसी ऐसे सराउंडिंग में रखो जहां जिसका टेम्परेचर आपके सिलेंडर से कम हो, तो होगा क्या, आपके सिलेंडर से हीट एनर्जी बाहर की तरफ जाएगी. ऑफ कोर्स एनर्जी ऑलवेज flows from higher energy level to lower energy level, correct? So now there is a loss in the temperature, and when there is a loss in the temperature, there will be a loss in the internal energy. And when you talk in the terms of work done, अगर आप अपने गैस को अलाउ करो एक्सपांड करने के लिए, तो आपके गैस मॉलिक्यूल्स अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करेंगे इस पिस्टन को एक्सपांड करने के लिए. So of course they are using their energy to expand this piston, and when they are using their energy, internal energy to expand this piston, मतलब सिंपली क्या होगा, वो अपनी एनर्जी को यूज कर रहा है मतलब there will be a loss in the internal energy. That's all. So this experiment is giving a relation between work done, heat and internal energy. ये जो एक्सपेरिमेंट है हमको तीन चीजों के बारे में समझाता है कि आपका जो वर्क डन, हीट और इंटरनल एनर्जी है, ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है. एंड दिस थ्री थिंग्स, दिस एक्सपेरिमेंट लीड्स यू टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ योर थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज आफ्टर zeroth law of course, that is your first law of thermodynamics. ये एक्सपेरिमेंट आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ फ्लो दिखाता है. I think already आपने first law of thermodynamics किया है. Can anyone say me what is first law of thermodynamics? Before I start explaining, कोई बता सकता है what is first law of thermodynamics and what it deals with? हेलो मैम. Anyone? Yeah. मैम फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है. Conserved होती है. Okay. Anything else? Anything else? कोई ऐसा है जो फर्स्ट लॉ के बारे में समझा सकता है? Okay, let's go ahead. Of course, आपका जो फर्स्ट लॉ है, it's an extension of your, आपका जो फर्स्ट लॉ है, it's an extension of your law of conservation of energy. आपका फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक्सटेंशन है. मतलब एग्जैक्टली है क्या, प्लीज समझो. आपका जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो ये बोलता है कि अगर कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, उस आइसोलेटेड सिस्टम में की जो एनर्जी होती है वो हमेशा कंजर्व्ड होती है. ओके. और ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये थोड़ा सा ऊपर जाके बात करता है. वो क्या बात करता है वो हम आगे जाके समझेंगे. बट इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर फर्स्ट लॉ ऑफ, सॉरी, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था तो वो सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बात करता था. बट यहाँ पर ये लॉ जो है ये ओवरऑल एक्सप्लेन करता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अप्लाइड टू एवरी प्लेस. मतलब अगर कहीं पर भी वर्क डन हो रहा है और वहां पे एनर्जी का कंसेप्ट है, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी अप्लाइड देयर. ऐसा कभी नहीं होगा कि देयर इज सम, अगर आपने 200 जूल्स दिया है तो यू विल गेट 201 जूल्स. दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके. देयर विल बी ऑलवेज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अगर वो 1 जूल है तो उस 1 जूल का भी एक्सप्लेनेशन आएगा कि वो एग्जैक्टली कहाँ से आया हुआ है. सो दिस लॉ एक्सटेंड्स योर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ. ओके. Let's go ahead with the first law of thermodynamics. Let's understand it in deep. For this, of course, we will go ahead with the experiment again. This first law of thermodynamics, first of all, deals with the relation between your heat and work. आपका first law of thermodynamics, heat, work, and of course, internal energy के बीच के relations को derive करता है, जिसको आपने already पढ़ा हुआ है. Okay? But still, we are going to discuss about it. Yeah, of course. But still, we are going to discuss about it. कि कैसे क्या हो रहा है. Okay. Let's go ahead. Now, let us consider a cylinder again. Please ध्यान से सुनते जाओ. अगर concepts chemistry से clear है तो
और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे मैं जो भी समझा रही हूँ उससे. Let's take a cylinder. Okay, it consists of a massless piston, frictionless massless frictionless piston, and it consists of an ideal gas inside. ठीक है, I am dealing ideally now. Now what? कि let's take कि when this piston expands, जब ये piston expand होता है, expand हो रहा है मतलब of course वॉल्यूम बढ़ रहा है. वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि वर्क डन हो रहा है. ओके, सो कीप इट इन माइंड, प्लीज ध्यान से सुनो. जब भी वॉल्यूम बढ़ता है आपका वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. वॉल्यूम जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा वर्क डन उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा. मीन्स वर्क डन विल बी पॉजिटिव. आर यू क्लियर? Whenever the piston, that is, sorry, the gas inside the container expands and this piston comes out, volume increases, then your work done by the system, please ये sign convention बहुत important है, ध्यान से समझो. Work done by the system is positive. Means अगर expansion हो रहा है, if this is expanding, expanding का मतलब है volume बढ़ रहा है. If it is expanding, then the work done by the system is positive. Okay, and exactly यहाँ पे होता क्या है? If I talk in the terms of internal kinetic energy, okay, if I talk in the terms of ohms, please wait. मुझे थोड़ा line wise, sequence wise जाने दो, otherwise you will be confused in the signs and symbols, and I need you to be very much clear. तो मुझे please sequentially जाने दे. Now, work done by the system is positive when your system expands. आपका जब system expand होता है तो आपका जो work done होता है it is positive, means volume is increasing. Okay, clear with the part? And here the molecules inside the container, ये जो molecules है गैस के, ये molecules क्या करते हैं? अपना momentum loss करते हैं. मतलब exactly हो क्या रहा है? These molecules are using their energy to help in expanding this piston. Okay, so keep it in mind कि whenever the work done is positive, of course the internal energy of the system is being lost because this gas molecules are using their energy in expanding the piston. ये gas molecules अपना momentum loss कर रहे हैं for expanding this system. Okay, so work done by the system is positive when your system expands. इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो कि जब आपका सिस्टम काम करता है, जब आपका सिस्टम काम करता है तो वो हमेशा हमको अच्छा लगता है. सिस्टम हमारा है, हम सिस्टम को ऑब्जर्व, हमको सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है फिलहाल, हम सिस्टम को मेन लेके चल रहे हैं. तो जब भी सिस्टम काम करेगा, सिस्टम इज लाइक माय चाइल्ड, तो जब भी सिस्टम काम करेगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा. क्लियर? सो वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव. आर यू क्लियर विद द थिंग? व्हेन द वर्क डन इज पॉजिटिव. समझा? कोई किसी को कुछ डाउट है? आर यू क्लियर? किस तरीके से याद रखोगे कि वर्क डन कब पॉजिटिव होता है? सिस्टम इज योर चाइल्ड. अगर वो कुछ काम कर रहा है तो हमेशा व्हेन यू डू वर्क एट होम, घर पे जब आप काम करते हो आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे लगते हो. योर फैमिली थिंक्स पॉजिटिव अबाउट यू. तो व्हेनेवर सिस्टम डज अ वर्क इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. और ऑफ कोर्स सिस्टम कहाँ किसके ऊपर काम करेगा? बाकी की ये चीज छोड़ के बाकी की पूरी दुनिया तो सराउंडिंग है, तो सिस्टम काम किसके ऊपर करेगा? ऑफ कोर्स सराउंडिंग के ऊपर ही करेगा ना. तो ऑफ कोर्स वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव. नेक्स्ट लेती हूँ. अब इसी चीज से एक और चीज कंक्लूड कर रही हूँ, जरा ध्यान से समझना. व्हाट आई एम कंक्लूडिंग हियर, प्लीज ध्यान से. आई सेड वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड ऑफ कोर्स ये कब हो रहा है? जब मेरे इंटरनल एनर्जी क्या कर रहे हैं? अपनी एनर्जी को यूज कर रहे हैं इस सिस्टम को एक्सपांड करने के लिए. मतलब ऑफ कोर्स देयर विल बी अ लॉस इन द इंटरनल एनर्जी. जब मैं काम करती हूँ मैं थक जाती हूँ. तो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो आपकी जो चेंज इन एनर्जी होगी डेल्टा यू,
वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, बिकॉज यू विल लॉस द एनर्जी। क्लियर विद द पार्ट, समझा? नेक्स्ट वी विल गो अहेड। अब लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। सेम सिलेंडर है, मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं बाहर से वर्क डन कर रही हूँ एंड आई एम कंप्रेसिंग दिस गैस। ओके, आई एम डूइंग अ वर्क डन फ्रॉम आउटसाइड। अब हियर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। कोई तो आगे मेरे बच्चे को चिल्ला के जा रहा है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। whenever work is done on the system, always keep it in mind, it is taken to be negative. मेरा बच्चा काम करे बहुत अच्छा, मेरे बच्चे के ऊपर कोई काम करे I don't like it. Are you understanding? So work done on the system is always taken to be negative. मतलब जब expand होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, वर्क डन इज पॉजिटिव, क्योंकि वॉल्यूम का एक्सपांशन एंड वर्क डन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो ऑफ कोर्स वर्क डन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव कंसीडर होगा। आर यू क्लियर? एंड ऑफ कोर्स नाउ बाहर से मैं वर्क डन कर रही हूँ तो वो सारा वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी किसको मिलेगा, मेरे गैस मॉलिक्यूल्स को मिलेगा। मतलब मेरे गैस मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। व्हेन आई डू अ वर्क ऑन यू, ठीक है, जब कभी भी बाहर से हमारे ऊपर काम होता है तो हमारे अंदर की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है कि भाई इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ये मेरे ऊपर कैसे काम कर सकता है। We get inspired, take it in a positive way. Okay, so here when a work done by the surrounding on the system happens, of course your work done is negative, but your internal energy now, क्योंकि बाहर से उसको वर्क डन हो रहा है, वर्क डन होने से हीट होगा तो अंदर वालों को एनर्जी मिलेगी। So whenever work done is negative, work is negative, your internal energy will be positive. These two experiments explain you this. कि when you will take work done as positive, when you will take work done as negative. एक्सपांशन होगा, सिस्टम काम करेगा। एक्सपांशन हो रहा है मतलब गैस काम कर रहा है। एक्सपांशन होगा जब गैस काम होगा, गैस काम करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब वर्क डन पॉजिटिव होगा। ऑफ कोर्स वॉल्यूम बढ़ने के लिए सिस्टम अपना एनर्जी यूज कर रहा है, तो ऑफ कोर्स चेंज इन एनर्जी, देयर विल बी अ लॉस इन द एनर्जी। फाइनल एनर्जी, चेंज इन एनर्जी का मतलब क्या होता है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। लॉस हो रहा है तो ऑफकोर्स फाइनल का वैल्यू इनिशियल से कम होगा, तो आपका डेल्टा यू का वैल्यू नेगेटिव आएगा। सो व्हेनेवर वर्क डन इज पॉजिटिव, योर डेल्टा यू इज नेगेटिव। व्हेनेवर वर्क डन इज नेगेटिव, योर डेल्टा यू इज पॉजिटिव। सो इस तरीके से सिंपली याद रखो, ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम कंफ्यूजन देगा। सिंपल याद रखो, सिस्टम काम कर रहा है, वर्क डन इज पॉजिटिव। सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, ऑफकोर्स काम करने वाला बाहर का सराउंडिंग ही होगा। सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, वर्क डन इज नेगेटिव। मेरे बच्चे को कोई कुछ नहीं काम करवाना चाहिए, मैं करवाऊंगी चलेगा, समझ में आया? मेरा बच्चा खुद से कर रहा है, आई विल फील पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव। मेरे बच्चे को कोई जबरदस्ती काम करवा रहा है, जो कंप्रेशन हो रहा है वो जबरदस्ती हो रही है, तो वर्क डन इज नेगेटिव। क्लियर विद द पार्ट? जब बच्चा खुद से काम कर रहा है, एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट, एंड एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट मींस डेल्टा यू विल बी नेगेटिव। Are you clear with the relations? Please ask if you have any doubt. ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है सम सॉल्व करने के लिए, तो प्लीज ध्यान से समझो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही बोलेगा, द वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब मेरा सिस्टम काम कर रहा है, तो मेरे को दिमाग में सीधा आना चाहिए, वर्क डन बाय द सिस्टम बोल दिया, वर्क डन किसी भी फॉर्म में दिया हो, ऑलवेज टेक +20 जूल्स। और अगर ऐसा किसी ने बोल दिया द वर्क डन ऑन द सिस्टम, मेरा दिमाग सीधा क्लियर करना चाहिए, ऑन द सिस्टम मेरे सिस्टम से काम करवा रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल। मींस अगर प्लस ऊपर 20 जूल भी दिया है तो सम सॉल्व करते समय आपको -20 जूल लेके सॉल्व करना है। मिस केमिस्ट्री में उल्टा पड़ा है, कुछ नहीं उल्टा पड़ा है केमिस्ट्री में, यही चीज पढ़ी है तुमने केमिस्ट्री में भी। मिस अगर दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, नहीं, जब तक खुद से काम हो रहा है तब तक तो नहीं। बालाजी क्या उल्टा पड़ा है, क्या हुआ? आकांक्षा आस्क, बोलो। फॉर्मूला -b एक्सटर्नल इनटू डेल्टा b है ना? एक मिनट, यू नॉट ऑडिबल, प्लीज आस्क अगेन। हेलो मिस, हाँ प्लीज आस्क अगेन।
मिस वर्क डन का जो फॉर्मूला है ना वो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी है ना? माइनस बी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी है ना? पीडीवी की बात कर रहे हो आप? अगर वर्क इस सिस्टम कर रहा है तो V2 का बड़ा रहेगा बिकॉज एक्सपैंड हो रहा है ना. ओके ओके, लिसन 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 लिसन, एक बात क्लियर रखो। सी, ये जो आप ले रहे हो ना नेगेटिव पॉजिटिव, ये जो कंसेप्ट है इसको किस तरीके से लिया जाता है, दैट इज ऑन द अप्रोच. ओके, कीप इट इन माइंड दैट व्हेन यू से पीडीवी, okay, when you say pdv, work done is of course pdv. Okay, so when you say pdv, dv is the change in the volume, correct hai? If it is expanding, simple sa funda, if it is expanding, your final volume is greater than the initial volume. Okay, so when final volume is greater than the initial volume, what happens? तो मिस V2 माइनस V1 पॉजिटिव आएगा तो वर्क डन Exactly. नेगेटिव आएगा ना. आपने ये कहाँ पे पढ़ा है? आई नीड टू सी. केमिस्ट्री में ऐसे बताया था. I need to have a look, but according to this approach, see, always keep it in mind कि work done on the system is taken to be positive and work done by the system, work done by the system is taken to be positive and work done on the system is always taken to be negative. This is what is the approach. और ये सारी चीजें approach का way है, like it's all about the approach. Keep it in mind कि ये चीजें आपको, आप origin कैसा fix कर रहे हो उस पे matter करता है. See, always remember work done is PDV and you are going from initial. If you go for, we will prove it further कि when you will take PDV, of course होगा क्या, your volume is going from initial to final. ठीक है, so simply आप क्या करते हो, VF minus VI, that we are going to prove further. हम लोग experiment, हम लोग theorem के through proof भी करेंगे इसको. I was thinking about कि chemistry और physics में तुम लोग confuse होगे, but keep it in mind, simple फंडा है कि if there is a work done by the system, it will be always positive, and if it is work done on the system, it will be always negative. Are you clear? केम का डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वाइस वर्सा लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है. क्लियर विद द थिंग्स? हेलो मैम. हाँ बोलो. मैम केमिस्ट्री में माइनस पीडीवी था. ओके, मुझे एक बार केमिस्ट्री का अप्रोच देखना पड़ेगा, बट सी व्हाटएवर, whether you study in chemistry or you study in physics, keep it in mind कि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. मीन्स देयर इज नो चेंज बिटवीन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. ओके, अगर ये नेगेटिव साइंस का अप्रोच वो लोग ले रहे हैं ना, तो दे आर गोइंग अहेड विद द फॉर्मूला ऑफ माइनस पीडीवी, और यहाँ पर जो अप्रोच लिया है वो प्लस पीडीवी करके लिया है. तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि उन्होंने क्या अप्रोच लिया हुआ. इट्स ऑल अबाउट द अप्रोच. अगर आप पीडीवी लेके सॉल्व कर रहे हो, ओनली पॉजिटिव पीडीवी, देन दिस पार्ट इज अप्लाइड. अगर आप माइनस पीडीवी लेके सॉल्व कर रहे हो, तो जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है वो लेकर अप्लाई करोगे. ठीक है, सो ओरिजिन आपने क्या लिया है, दैट मैटर्स हियर. आपने ओरिजिन क्या लिया है, दैट मैटर्स हियर. अगर आप वर्क डन माइनस पीडीवी लेके सॉल्व कर रहे हो, देन ऑफ कोर्स देन यू विल गो फॉर द केमिस्ट्री अप्रोच. और अगर आप वर्क डन इज इक्वल्स टू सिर्फ पीडीवी लेके सॉल्व कर रहे हो, देन यू विल गो फॉर द फिजिक्स अप्रोच. बट आई नीड टू सी कि सर ने एग्जैक्टली क्या किया है. आई नीड टू सी, क्योंकि कोई भी अप्रोच आप यूज करो, जो मेन थियरी है इट शुड नॉट गेट चेंज्ड, इट शुड नेवर गेट चेंज्ड. तो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन एंड बाय थियरम आई कैन प्रूव दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू पीडीवी. सर ने वो नेगेटिव का मीनिंग समझाया था आपको जब एक्सप्लेन किया था कि व्हाई ही हैज टेकन वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पीडीवी. प्लीज एक्सप्लेन बालाजी, why sir have taken minus pdv.